हेलो। गुड। ये वाला आप ले लीजिए। थैंक यू। आर वी लाइव? क्या हम लाइव हैं? Good. Okay. Hi everyone. Good morning. Thank you so much for joining in. Thank you so much for joining in live. People sitting online, can you just please confirm whether my voice is audible or not? Whether my voice is audible or not? Yes. The chat box. Okay. Few people have written the answers. I have checked it. Few yet to be checked. People sitting online, can you just please confirm whether my voice is audible or not? And good morning, everyone, for joining in live. We'll start in few minutes. I know, apologies for the fact that we are starting 7 minutes late today, but due to some technical problem, we were not able to connect. Okay, so few people copies I have already checked. Can you just rotate the camera? Okay, thank you so much. Okay, so few copies I have checked already. Few copies I have checked already. With respect to the batch, Yash, and I think Yash and Mehak performed really well. So Yash and Mehak performed really well. They were up to the benchmark. So basically, if you guys are writing this type of answers in the exam, then you will not face any problem. Okay? So I will be giving the copies, but you both guys perform well. Yash, the second paper that you gave me yesterday or day before yesterday, I don't know, I don't remember. I think this was the perfect copy I saw when it comes to handwriting, presentation, case law section, and the presentation. So basically, what we discussed about the presentation of the answers, वो अगर follow कर रहे हो तो बहुत अच्छी copy लग रही है. ठीक है? With respect to other people, I have added comments जहाँ जहाँ पे requirement है जो जो चीज़ों की. Few people have outstandingly performed worst. तो बेसिकली उनका इतना वर्स्ट परफॉर्मेंस है कि जब मैं कॉपी चेक कर रही थी तो आई वॉज थिंकिंग मैं चेक क्या करूँ क्या छोड़ूं. तो जिसको मैंने कमेंट्स दिए दैट प्लीज टॉक टू मी, तो प्लीज टॉक टू मी. आई विल टेल यू पर्सनली what all thing needs to be improved and you guys can distribute among them yourself the copies. बट कुछ लोगों को तो बहुत जरूरत है. महक एंड यश हैज परफॉर्म्ड रिलेटिवली गुड. ठीक है? So you guys can take your answers and if I have written the comment कि मुझसे बात करो एक बार, तो मुझसे एक बार बात कर लेना. जिसके इसमें मैंने कमेंट नहीं लिखा है उसको करने की जरूरत नहीं है, बट पीपल हैव परफॉर्म्ड वेल, तो यू गाइज हैव गुड चांसेस. ठीक है, चलो. चाली आंसर्स टुडे. देखो ऐसा है, मैं अब तुम्हें बताती हूँ. फैमिली फंक्शन में गए थे, दिवाली फंक्शन में गए थे. दिवाली फंक्शन था. दिवाली हर साल आएगी, ग्यारस भी हर साल आएगी. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, do not compromise your studies for festivals and family functions and marriages. Do not compromise. You're compromising your career, you're compromising your thing जो तुम्हें पैसा दिलाएगा लाइफ टाइम, एज कंपेयर टू जो दिवाली जो हर साल आनी है. एवरी ईयर दिवाली विल कम. so make choice very perfectly because you have an attempt in the month of January, right? तो बचे कितने दिन है? It's barely barely, I would not say 1.5 months, more than not 1.5 months, मोटा मोटा. तो अगर तुम लोग अभी भी ये सोच रहे हो कि you guys need to focus on family functions, नहीं होगा. ऐसे होता नहीं है किसी का. क्योंकि अगर मेरे को भी फैमिली फंक्शन में जाकर काम करने होते, इमेजिन द फैक्ट आई एम अर्निंग एंड आई डोंट गो टू फैमिली फंक्शन स्टिल, क्योंकि मेरा सुबह का रन मिस हो जाता है एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दैट.
So make the choices correctly. I can just say that make the choices correctly. I have given you the comment that please talk to me. I will talk after the class. ठीक है? I will talk. बाकी your answers? हाँ दे दो. You guys are joined newly. बाकी आजान से तो आजान से ही मुझे बात करनी है. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी ये टॉपिक है बड़ा बड़ा. दिस इज अ बिग टॉपिक. बट पॉइंट क्या है कि हमें रिफ्रेशर के हिसाब से 2 घंटे में कंप्लीट करना है. तो मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर करूंगी और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है वो हम स्किप करते रहेंगे. बट जब आप आंसर्स लिखोगे बट जब आप आंसर्स लिखोगे तो आप आंसर्स आपके प्रॉपर नोट्स को पढ़ के लिखोगे. ये सिर्फ ब्रशिंग अप है, ये सिर्फ डस्ट हटा रही हूं मैं कि आपका थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाए कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसके सेक्शन क्या है. ठीक है चलिए. ऑलरेडी वी आर लेट. इंट्रोडक्टरी नोट्स ऑन इंडेमनिटी गारंटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. चलो पहले इंडेमनिटी पढ़ते हैं. इंडेमनिटी का सेक्शन पढ़ो. सेक्शन क्या है? 1 to 4. तो मेरे को एक बात बताओ, टाइम एंड परफॉर्मेंस का सेक्शन क्या था? हाँ हाँ. तो 51 से 58 क्या था? 59 से 61 अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट. अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट. हाँ ठीक है चलिए. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करते हैं. तो 1 to 4 सेक्शन क्या है? 1 to 4 इंडेमनिटी की बात करें. अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच one party promises to another to save him from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called as contract of indemnity. समझना. A contract by which one party promises to another to save him from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself. ये कॉन्ट्रैक्ट को एक बार इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो. ये वाले पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो. अब इंश्योरेंस में देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू अनदर टू सेव हिम फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम. तो वन पार्टी क्या हो गया? ये इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी ने क्या प्रॉमिस किया कि वो सेव करेगा दूसरे को from the loss caused to him by the conduct of promiser himself. तो इमेजिन करो अगर एक्सीडेंट का इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, तो एक्सीडेंट किसने कॉज किया है? मैंने कॉज किया है. बट इसकी गारंटी कौन ले रहा है? इंडेमनिफाई कौन कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी. बाय द कंडक्ट ऑफ एनी द पर्सन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. अब समझना. द पर्सन हु प्रॉमिसेस टू प्रोटेक्ट अनदर इज कॉल्ड एज the person who is so protected is called as indemnity holder या indemnified. जो पर्सन प्रॉमिस करता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा उसको क्या बोलेंगे? इंडेमनीफायर. जो पर्सन को प्रॉमिस किया जाता है कि आप सेव होगे, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी होल्डर. इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड. तो अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं आपको सेव करूंगी तो मैं क्या हो गई? इंडेमनीफायर. जिस पर्सन को मैंने प्रॉमिस किया है वो क्या हो गया? इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर. अब सुनो. इंडेमनिटी मीन्स एन एक्ट टू कॉम्पनसेट और प्रोटेक्ट समबडी फ्रॉम द लॉस और मेक गुड टू द लॉस. मतलब एक लॉस हो चुका है, उसकी भरपाई करना. एक लॉस की भरपाई करना. भरपाई मतलब सामने वाले को कॉम्पेंसेट करना या प्रोटेक्ट करना. क्या करना? कॉम्पेंसेट करना या क्या करना? प्रोटेक्ट करना. इसे क्या बोलेंगे? इंडेमनिटी. इसे क्या बोलेंगे? इंडेमनिटी. When one person promises to another that in case another person suffers from some loss, the first person will compensate. मतलब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूं कि अगर महक को कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा?
मैं करूंगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका सेक्शन क्या है? इसका सेक्शन क्या है? 124। तो कॉन्ट्रैक्ट जो करता है प्रॉमिस की मैं तुम्हें सेव करूंगा उसको क्या बोलते हैं? इंडेमनीफायर। और जो पर्सन को किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इंडेमनिटी, इंडेमनिटी होल्डर, क्योंकि उसने इंडेमनिटी होल्ड करके रखी है। तो मैंने महक को प्रॉमिस किया कि महक अगर तुम्हारा कोई लॉस होता है और इस चीजों का लॉस होता है तो गगन विल सेव यू, गगन विल सेव यू या गगन विल कंपेंसेट यू। तो मैं कौन हुई? मैं हुई इंडेमनीफायर। महक कौन हुई? इंडेमनिटी होल्डर। ये सेक्शन क्या है? ठीक है, अब समझो। अब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के वैलिड एसेंशियल्स क्या होंगे? हम दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी लॉस ईदर बाय द प्रोमिसर कंडक्ट or by any other person's conduct, or by any other person conduct. There must be loss either by the promisor's conduct, promisor conduct, or by any other person's conduct, or by any other person conduct. ठीक है, तो देखिए लॉस होना चाहिए। लॉस कैसा होना चाहिए? प्रोमिसर का कंडक्ट, मतलब जिस प्रॉमिसर के कंडक्ट से लॉस होना चाहिए या किसी और के पर्सन से लॉस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, एंड इट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय नेचर। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या था? हैपनिंग और अनहैपनिंग ऑफ इवेंट। अनसर्टेन क्या था वो? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट था। क्या था? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी क्या है? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है कि अगर फैक्ट्री में फायर लग गया फ्यूचर में या फैक्ट्री जल गई तो उसका इंश्योरेंस, उसका कंपेंसेशन कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है अजान, आई हैव गिवन द पेपर्स, आई हैव चेक द पेपर्स। ठीक है, एक बार देख लेना। अगर मैंने इस पे कमेंट डाला है टॉक टू मी तो एक बार बात कर लेना। अगर कमेंट कुछ नहीं डाला है तो इट्स रिलेटिवली अ गुड कॉपी। अभी तक जो मैंने कॉपी चेक की थी उसमें महक एंड यश की कॉपी बहुत अच्छी थी, मतलब देवर अप टू द मार्क। अप टू द मार्क इन द सेंस उसमें बस और थोड़ी डिफाइनिंग कंटेंट की हो सकती है, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से इट वाज अ गुड। तो मैं एक बार देख लेना तुम्हारी कॉपी नहीं। वैसे हालांकि यू हैव रिटन गुड बट स्टिल स्ट्रक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है बस। एज फार एज आई रिमेंबर मैंने जो याद किया है स्ट्रक्चरिंग की है, बाकी तो इट्स गुड। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन क्या है? 124। ठीक है, 124। ठीक है, आप समझिएगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये क्योंकि फ्यूचर में होगा, अनसर्टेन है। अगर मान लो फैक्ट्री में फायर ही नहीं लगी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फोर्स में आएगा क्या? वो तो ऐसे कैसे ही पड़ा रह जाएगा, राइट? तो पहले क्या है? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा क्या है? ये कंटीजेंट नेचर का है। दूसरा क्या है? कंटीजेंट नेचर का है। पहला क्या है? वैलिड है। दूसरा क्या है? कंटीजेंट नेचर का है। तीसरा क्या है? ये लॉस होना जरूरी है। लॉस होना जरूरी है तो ही तो कंपेंसेशन होगा। अगर लॉस ही नहीं हुआ तो काहे का कंपेंसेशन? तो लॉस होना जरूरी है। लॉस जब होगा तो फिर कंपेंसेशन भी मिलेगा। क्या ये एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों हो सकता है? हाँ, चलो अब हम बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर कौन किया है? जिसने प्रॉमिस किया है। commences when the indemnified suffers some loss according to the terms and condition of contract। समझना, ठीक है? महक की एक फैक्ट्री है, वो बनाती है कॉस्मेटिक्स। ठीक है, फेसेस कनाडा के कॉस्मेटिक्स तुम इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हो। ठीक है, मैंने ये इंडेमनीफाई किया महक को और मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं कि महक अगर तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई तो उसकी इंडेमनीफाई होल्डर मैं होंगी। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब चालू होगा तुम्हारे साथ? कॉन्ट्रैक्ट कब फोर्स में आएगा? जब लॉस होगा, जब फैक्ट्री में आग लग जाएगी। यही है लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफाई। कमेंसेस, कमेंसेस मतलब स्टार्ट, कमेंसेस मतलब स्टार्ट व्हेन द इंडेमनीफाइड सफर्स
सम लॉस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लिखा है, कमिंग अप, टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है द मोमेंट फैक्ट्री विल सफर एनी फायर अटैक। तो जो जिस मोमेंट पे फैक्ट्री पे अटैक हुआ है फायर का, उस मोमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी चालू हो जाएगा। तो एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस अगर उसकी फैक्ट्री में कोई लॉस होता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एनफोर्स में आ जाएगा। यस चाली। एक बार मेरे को भेज देना स्क्रीनशॉट या मेरे को पढ़ा देना, ठीक है। चलो, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस, जैसे मैंने बात करी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं होता ये बताओ। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, इफ द एक्स पर्सन डाइज उसकी फैमिली को पैसे मिलते हैं, यही है लाइफ इंश्योरेंस कि उसकी फैमिली को पैसे मिलते हैं। तो इंडेमनिटी का पर्पस क्या है, कॉम्पेंसेट करना। लाइफ इंश्योरेंस में कैसे आप कॉम्पेंसेट कर पाओगे किसी की लाइफ को, एग्जैक्टली आप कॉम्पेंसेट कर ही नहीं पाओगे किसी को भी, राइट, आप कॉम्पेंसेट नहीं कर पाओगे। तो क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं आता, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं। देखो तो डेफिनेशन हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहां पढ़ी, 124 में पढ़ी, ठीक है। 124 में जब हमने पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा कि जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के पार्ट है, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब मुझे एक बात और बताओ, क्या क्या वैलिड एसेंशियल्स होने चाहिए। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, वैलिड। ये किस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट, जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें इंडेमनिफाई करूंगा उसको इंडेमनिफायर, जिसको प्रॉमिस किया है इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। क्या एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों हो सकते हैं, और लॉस किसको होना चाहिए, प्रॉमिसर को, अदर पर्सन को, ठीक है। चलो अब बात आती है कि लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर कब स्टार्ट होगी, द मोमेंट लॉस होगा, बट किस पे डिपेंड करता है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किस पे डिपेंड करता है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर समझिएगा, द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर आर डिपेंडेंट ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज अ जनरल रूल। जिसको इंडेमनिटी मिली है उसके राइट्स की बात चल रही है, ठीक है। इसका सेक्शन क्या है, 125, जिसको इंडेमनिटी मिली है उसके राइट्स की बात चल रही है। अब समझना, एज ए जनरल रूल तो टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको देखना पड़ेगा कि उसके राइट्स क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है। बट सेक्शन 145 ऑफ आईसीए कम्स इनटू प्ले व्हेन द इंडेमनिटी होल्डर इज सू अंडर स्पेसिफिक सिचुएशन। अब आएगा अंडर स्पेसिफिक सिचुएशन, जिसको इंडेमनिटी मिली है, प्लीज समझना, जिसको इंडेमनिटी मिली है उसके राइट्स की बात चल रही है, करेक्ट। जिसको इंडेमनिटी मिली उसके राइट्स की बात चल रही है, तो हम क्या देखेंगे सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो फॉलो कर लेंगे, राइट। बट इसका सेक्शन क्या है, सेक्शन समझो, ठीक है। सेक्शन ये बोलता है 125 स्टेट्स राइट्स क्या है, क्लेम फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर कॉस्ट ऑफ सूट, रिकवरी ऑफ सम पेड अंडर कंडीशंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब ये है जिसको इंडेमनिटी मिली है वो अपने राइट्स के लिए, अपने लायबिलिटीज के लिए, अपने राइट्स और लायबिलिटीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देखेगा कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। ये क्या है, ये क्या है, जनरल रूल, ये क्या है, जनरल रूल। बट स्पेसिफिक सिचुएशंस में उसके पास एक डिफरेंट टाइप के राइट है, स्पेसिफिक सिचुएशंस में उसके पास डिफरेंट टाइप के राइट है। वो कहाँ मेंशन्ड है, 125 में। वो क्या क्या राइट है देखो, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है अंडर 125 सब क्लॉज 1,
वो कॉस्ट ऑफ सूट क्लेम कर सकता है अंडर 125(2) और वो रिकवरी ऑफ सम पेड अंडर कंडीशन ऑफ प्रॉमिस भी क्लेम कर सकता है अंडर 125(3). तो 3, वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, वो कॉस्ट ऑफ सूट भी क्लेम कर सकता है, वो रिकवरी ऑफ सम भी क्लेम कर सकता है। अब समझो, ये तीनों में एक चीज कॉमन है, पैसा। अल्टीमेटली वो पैसा क्लेम कर सकता है, ठीक है। वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, करेक्ट, वो कॉस्ट ऑफ सूट भी क्लेम कर सकता है और वो रिकवरी ऑफ सम पेज अंडर कंडीशन ऑफ प्रॉमिस भी क्लेम कर सकता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? नहीं है, चलो। अब द इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर, इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर। और जो भी हम पढ़ा 125(1) में क्या है, डैमेजेस, all the damages that he may have been compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise of the indemnifier applies। समझना, ये समझना। If A contracts to indemnify B against the consequences of any proceeding which C may take against B in respect of a particular transaction। मैं A हूं, महक B है और सी है चार्ली। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया किससे, महक से, कि महक में जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग, अगर चार्ली आपके अगेंस्ट कोई सूट फाइल करता है और उस सूट फाइल में ऐसे कोई कॉन्सिक्वेंस होते हैं जहां पे आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, तो उसकी इंडेमनिफाई कौन करेगा, मैं करूंगी। If C does institute legal proceeding against B, चार्ली ने क्या किया, महक के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर दी अगेंस्ट B, in that matter B pays, इंडेमनिटी होल्डर कौन है, तो इस केस में कौन था, महक थी, राइट। तो महक का क्या राइट है कि वो क्लेम फॉर डैमेजेस ले सकती है, ठीक है, क्लेम फॉर डैमेजेस ले सकती है। किसी को क्लियर नहीं हुआ, किसी को क्लियर नहीं हुआ, क्लियर है? हम तुम्हारे राइट की बात कर रहे हैं। जब हम तुम्हारे राइट की बात कर रहे हैं तो तुम्हारा पहला राइट है क्लेम फॉर डैमेजेस। क्लेम फॉर डैमेजेस का राइट कब आएगा, जब तुम्हारे अगेंस्ट सूट फाइल किया है, किसने, चार्ली ने, मैंने तुम्हें इंडेमनिफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुम्हें चार्ली को कोई डैमेजेस पे करने पड़े तो उसका इंडेमनिफिकेशन मैं करूंगी। क्लियर? चलो। All the cost of suits that he may have had to pay to the third party, provided he acted as a man of ordinary prudence and he did not act in contravention of the direction of indemnifier, or if he had acted under the authority of indemnifier to contest the suit। Example समझो। In case of Adamsons versus Jarvis, Adamsons was entitled to recover the money he had to pay to the true owner of the cattle as well as the expenses incurred by him to get a legal counsel। समझो, कॉस्ट ऑफ सूट की बात चल रही है। कॉस्ट ऑफ सूट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सूट क्या होता है, लॉयर हायर करते हैं, कोर्ट में फी पे करनी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, हमें ये सब करना पड़ता है। तो जब हम इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सूट। तो कॉस्ट ऑफ सूट भी महक मुझसे रिकवर कर सकती है। मान लो उसने लॉयर हायर करा, उसने कोर्ट में फीस लगाई होगी, उसने स्टैम्प ड्यूटी दी होगी, वो पैसा भी महक मुझसे रिकवर कर सकती है, सब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड मतलब सब्जेक्ट टू ही एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस and did not act in contraventions of the directions of the indemnifier। मतलब उस प्रोसेस में महक ऑर्डिनरी प्रूडेंस में काम करे और कोई भी गलती ना करे और हमारे अग्रीमेंट का कॉन्ट्रवेंशन ना करे, हमारे अग्रीमेंट का कॉन्ट्रवेंशन ना करे। इसका लैंडमार्क केस क्या है, एडमसन वर्सेस जार्विस। क्या केस है, एडमसन वर्सेस जार्विस, एडमसन वर्सेस जार्विस। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट। ऑल द सम्स दैट ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी प्रॉमिस, अच्छे से पढ़ना, हाँ। ऑल द सम्स
that he may have paid under the terms of any compromise of any such suit provided मतलब ये conditions follow करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाले में क्या कंडीशन थी कि महक को क्या कैसे रहना है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस। इसमें देखना, provided such compromise is not contrary to the indemnifier's orders and was a prudent one, again was a prudent one, or if he has acted on the authority of indemnifier to compromise the suit। तो नो, the indemnity holder मतलब इसमें कौन है, महक, is also entitled to losses due to change of law not foreseen by the parties when they entered into contract of indemnity। सुनो, मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंटर हुआ, ठीक है, मेरा और महक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंटर हुआ। जिस लॉ के हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंटर हुआ है वो लॉ बाद में चेंज हो गया, तो जो भी लॉसेस कवर हुए हैं, जो भी लॉसेस हुए, महक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो बेसिकली महक को क्या क्या मिलेंगे, डैमेजेस, कॉस्ट ऑफ सूट और ऑल सम्स दैट हैव बीन पेड इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। कोई कॉम्प्रोमाइज में अगर तुमने कोई पैसा दिया है तो तुम उसके लिए भी एंटाइटल्ड होगी। ठीक है, क्लियर है, चलो अभी तक हमने किसके क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने किसके राइट पढ़े, इंडेमनिटी, वो कौन से सेक्शन में है, 125। ठीक है, 125 में पहले आप क्या देखोगे, नहीं, फर्स्ट चीज क्या देखोगे आप, पहले आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, पहले आप टर्म्स एंड कंडीशंस और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखोगे। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है उसके बाद किसको देखोगे, फिर ये 3 पॉइंट को देखोगे। ये किधर डिफाइंड है, 125(1), 125(2), 125(3). 125(1) में क्या है, क्लेम फॉर डैमेजेस, 125(2) में क्या है, कॉस्ट ऑफ सूट, और 125(3) में क्या है, अगर कॉम्प्रोमाइज में आपने कोई कॉस्ट पे करी है तो वो आ जाएगी। क्लियर है, बताओ क्या कुछ बोल रहे थे क्या, अजान नहीं, चलिए अब हम किसके राइट्स की बात कर रहे हैं, राइट्स ऑफ इंडेमनिफायर कौन है, मैं, इंडेमनिफायर कौन है, मैं। राइट्स अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन टू sue against third party after indemnifying the indemnity holder not to compensate for losses not covered under contract of indemnity। हाँ आएगा, अभी नीचे आएगा गारंटी। फिर मैंने ये भी समझाया गारंटी और इंडेमनिटी में क्या डिफरेंस है, राइट सेम है, यस पढ़े, समझ आ रहा है, यश अभय, सॉरी यश तो वो है, भूल जाती हूँ मैं। तो श्रेया, तनु, अभय, महक, चाली, यू गाइस ने नाम क्या है आप लोगों का, रवीना, और आपका संस्कृति, योर्स, हृदय, हैदर, अजान, यश, हरिओम। अच्छा हरिओम की कॉपी मैंने चेक करी है, हरिओम आपका, अक्षत, कमक, यशदीप, तो यशदीप, ओके। चलो देखो अभी आज हम लोग कॉपी डिस्कस भी करेंगे बिकॉज आई वांट टू डिस्कस कॉपीज विथ यू गाइज ऑल्सो, बट आई थिंक हरिओम यू ऑल्सो नीड सम इम्प्रूवमेंट। बट हरिओम ने भी कुछ आंसर्स अच्छे लिखे हैं, तो हमने कुछ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अभी हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक सेकेंड, आई थिंक गारंटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, गारंटीज देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरा और महक का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि फायर की वजह से अगर उसकी फैक्ट्री में कोई आग लगती है तो गगन वुड इंडेमनिफाई महक। ये क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या है, फायर की वजह से आग लगती है तो, ठीक है, फायर की वजह से आग लगती है तो मान लो उसकी फैक्ट्री में फ्लड आ गया,
फ्लड जब आया तो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी चीजें पूरी जल जाती है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पार्ट है? नहीं है, नहीं है। क्या? हाँ, तो बेबी हम तो कुछ और पढ़ रहे हैं भाई। कहाँ चले गए तुम? नहीं, नहीं। क्या ये पर्टिकुलर चीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आएगी? हाँ, अच्छा देखो, मैंने महक को इंडेमनीफाई किया कि महक अगर तुम्हारी फायर की वजह से फैक्ट्री जल जाएगी तो मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूंगी। फायर की वजह से फैक्ट्री पूरी जीरो हो जाएगी तो मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूंगी। ठीक है? महक की फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है फ्लड की वजह से, तो क्या होगा? थर्ड पॉइंट पढ़ो, नॉट टू कॉम्पेंसेट फॉर लॉसेस नॉट कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में लॉसेस वो मेंशन्ड नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो मेरा राइट क्या है कि मैं उसे इंडेमनीफाई ना करूं, मेरा राइट क्या है कि मैं उसे इंडेमनीफाई ना करूं, टू स्यू अगेंस्ट थर्ड पार्टी आफ्टर इंडेमनीफाइंग द इंडेमनिटी होल्डर। तो मैं ये एग्जांपल याद है कि महक को चार्ली को 20,000 रुपीज देने पड़े थे, याद है? अब क्या मैं चार्ली पे केस लगा सकती हूं कि मेरे को वो जो डैमेजेस दो वो वापस दो? क्या लगा सकती हूं थर्ड पार्टी को? नहीं लगा सकती, करेक्ट, नहीं लगा सकती। अब सुनना, अब एग्जांपल समझो। चार्ली की वजह से महक को कोई लॉस होता है, वो लॉस की इंडेमनिटी होल्डर मैं होती हूं, तो मैं पैसे किसने दिए? किसको दिए? महक को किसने दिए? अब क्या मैं चार्ली पे केस लगा सकती हूँ कि चार्ली की वजह से गलती हुई थी? क्यों नहीं लगा सकती? अब तो लगा सकती हूँ, चार्ली ने गलती करी थी, लगा सकती हूँ, मैं लगा सकती हूँ केस। तो टू स्यू अगेंस्ट थर्ड पार्टी कौन है इसमें? चार्ली। आफ्टर इंडेमनीफाइंग द इंडेमनिटी होल्डर, जब मैंने पैसे ऑलरेडी महक को दे दिए उसके बाद पहले मैं महक से मेरा सेटल कर लूंगी, उसके बाद स्टार्ट होगा, कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब अपन पढ़ लेते हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी उसके साथ। सुनो, चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहां डिफाइन है? 124 में डिफाइंड है। राइट्स कहां डिफाइंड है? 125। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलता है? टू इंडेमनीफाई the loss occurred due to समझो, लॉस और मेक गुड टू लॉस व्हेन वन पर्सन promises to another person that in case another person suffers from some loss the first person will compensate the loss। इसमें बताओ कितनी पार्टी? जो प्रॉमिस करता है वो कौन होता है? जिसको प्रॉमिस मिलता है वो कौन होता है? इंडेमनिटी होल्डर। इसके एसेंशियल पढ़ो, पहला क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। और बताओ? एक्सप्रेस से एम्प्लॉयड हो सकता है। और बताओ? लॉस इधर बाय द प्रॉमिसर कंडक्ट और बाय एनी कंडक्ट। और लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफाई कब स्टार्ट होती है? सर्टेन इवेंट वो लॉस हो जाता है। ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी में आते हैं? क्या आते हैं? क्या लाइफ इंश्योरेंस भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आता है? नहीं। अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर की। ये कौन है? महक। ये कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन
जनरल रूल क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस देखोगे। जनरल रूल क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस देखोगे। बट स्पेसिफिक 3 राइट मिलते हैं उसको, 125 1, 125 2, 125 3 में। 125 1 क्या बोलता है? डैमेजेस। दूसरा क्या बोलता है? तीसरा क्या बोलता है? नहीं नहीं, कॉम्प्रोमाइज में अगर महक ने कोई अमाउंट दिया हो तो ये समझो, रिकवरी ऑफ सम पेज अंडर द कंडीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अगर महक ने कॉम्प्रोमाइज में कोई अमाउंट दिया है तो वो इंडेमनिफाई कर सकती है। ये कहां मेंशन्ड है? ठीक है, अब राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर की बात करते हैं। वो कौन हूं? वो कौन है? मैं हूं। ठीक है, तो 3 राइट है। पहला राइट क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ, ये इंडेमनिटी फायर, इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स हैं, वो महक के राइट है। ये सब इंडेमनीफायर के राइट्स हैं मेरे, ये मेरे राइट है। ठीक है, अब मेरे राइट 3 है। कौन कौन से है? और थर्ड पार्टी को स्यू कर सकते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कोई लॉस कवर्ड नहीं है तो मैं उसके लिए लायबल। तो 3 3 दोनों जगह 3 3 है। तो महक के राइट पहले बताओ, महक के राइट क्या है? क्लेम फॉर डैमेजेस और कॉस्ट ऑफ सूट और रिकवरी ऑफ सम। कहां पे? कॉम्प्रोमाइज पे। ठीक है, अब मुझे बताओ मेरे राइट क्या है? और sue against थर्ड पार्टी और नॉट टू कंपेंसेट। ठीक है, क्लियर है? इंडेमनिटी क्लियर है? क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग है ना फोन कितना चलाते हो? Can somebody switch on the fan please? Can somebody, and you can you just ये थोड़ा सा ऊपर कर दो विंडो पे, it's suffocating. This one also. More, 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 more. It's a bit suffocating. Thank you so much. Oh, pretty good. Yeah. चले चले, फ्रेशनेस आई थोड़ी? बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, मैं कलर अगली बार से चेंज कर दूंगी। बट ये फ्रेशनेस आई तुम लोगों को? थोड़ी फ्रेशनेस आई ना? बहुत ज्यादा बॉडी अजीब सी हो रही थी। चलो, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, चलो, आई फील वेरी फ्रेश। तो मेरे को जरा कॉपियां देना एक एक करके। आई थिंक जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज एंड गिव मी द कॉपीज। फर्स्ट आई विल डिस्कस फ्यू कॉपीज एंड देन अगेन आई विल कम टू द अजान। कॉपी लो अपनी। चलो, आई एम डिस्कसिंग यश कॉपी, अभय कॉपी। आई एम डिस्कसिंग अभय's कॉपी। अब अभय लिखते हैं अकाउंटिंग अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। हाँ, गाइस टेक योर कॉपीज, और जो पर्सन अभी आज नहीं आया है उसकी कॉपीज तुम लोग रख लो। श्रेया तुम्हारी कॉपी है? मैंने कमेंट क्या डाला है जरा देखना। कमेंट क्या है? चलो ठीक है, मैं मतलब यू आर गोइंग डूइंग गुड। शी हैज आल्सो रिटन गुड। ठीक है, चलो ओके। अब अभय सेज अकॉर्डिंग अग्रीमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। पहली लाइन में गलती, अकॉर्डिंग नहीं है, अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन डैश agreement made without consideration is void. A contract is enforceable only when section 25 consideration is present. मैं तुम्हें बता रही हूं, आज के हालात में कम से कम 10 घंटा प्रैक्टिस करो राइटिंग की।
10 hours of writing practice you need. ठीक है. Provision for certain exception to this rule. One of the exceptional cases where a contract agreement through though made without consideration is valid and enforceable is when an agreement is made out of natural affection. क्या है ये? एंशियसनेस क्यों हो रही है तुम्हें? पॉजिटिवली लो. मैं अभी सबका उड़ाऊंगी, तुम्हें पता है. बट बेटा जो तुमने पढ़ लिया, तुम्हें समझ आया, तुम्हें समझ आ गया, ये मुझे पता दिख रहा है कि अभय को पता है कि क्या होता है, बट अभय ने लिखा ही नहीं. मैं क्या मार्क्स दूं? देखो, द एक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी लीगली एनफोर्सेबल. अब सुनो, ये सेंटेंस समझो. द एक्ट एक्सप्रेसली, एवरीबडी प्लीज नोट, द एक्ट expressly provides that an agreement without consideration shall be legally enforceable. उल्टा लिख दिया. Agreement without consideration shall be legally enforceable कि agreement with consideration shall be legally enforceable provided the following conditions are duly complied. Question mark. Now Colin duly complied with or in the following circumstances. The few condition needs to be duly complied with. No consideration, no contract. No consideration, no. All contract contain two parts, the promise and the consideration for such promise. Consideration की definition लिखनी है. Contract कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? Consideration कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? कहाँ मेंशन नहीं है? अरे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में पहले कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझाओगे, पहले कंसिडरेशन को नहीं समझाओगे, कैसे लिखोगे? फिर लिखा है अ प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज प्योरली ग्रेचुइटस. ये क्या है? तुम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो? 1-2 घंटे बस? क्या बाकी टाइम क्या करते हो? कितने घंटे की क्लासेस होती है? 6 घंटे की क्लासेस है. देखो, मैं बता रही हूं तुम लोगों को, बीच में कोई टाइम मिलता है यहाँ पर? देखो, जितना टाइम भी है, अगर लॉ वी के अकाउंट्स इको क्वांट अच्छा है तो लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करो. ये ग्रेचुइटियस, ठीक है. फिर सच प्रॉमिस में इसलिए पढ़ रही हूं ताकि सब लोग समझे कि गलती कहां हो रही है. आई विल रीड हरिओम्स कॉपी. अब है, मैं तुम्हें बताऊं, तुम वर्ल्ड की कोई भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बुक ले आओगे ना, उसमें भी आंसर नहीं मिलेगा. मैं अभी तुम्हें चैलेंज, मैंने वर्ल्ड की सारी कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं पढ़ी है, बट तुम वर्ल्ड की कोई भी कॉपी ले आओगे, तुम्हें ये वाला आंसर इज रॉन्ग. प्लीज डोंट डिफेंड योर सेल्फ. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई एम सेइंग फॉर यू. अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनूंगी. अब प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज प्योरली ग्रेचुइटियस. सच प्रॉमिस अभी, सो यू आर मेकिंग डबल सेंटेंसेस. अभी तुम मेरे को बोले कि मैम मैंने सजेस्टेड आंसर पढ़ा, फिर मैंने लिख दिया. फिर तुमने बोला कि मैम मैंने बुक पढ़ी, फिर ये लिख दी. Such promise cannot create a legal obligation on matter that is highly sacred and morally binding. अब है, आई एम नॉट टेलिंग कि तुम मेहनत नहीं कर रहे. आई एम नॉट टेलिंग गाइज, आई एम टेलिंग फॉर एवरीवन. आई एम नॉट टेलिंग कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो.
I am not telling that these answers are worst. I am telling it requires a lot of improvement. देखो, अगर मैं इन्विजिलेटर होती और ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता तो मैं 0.25 से ज्यादा नहीं देती, और 6 नंबर का तो मैं 1 नंबर देती. Thus the rule of law is that consideration on contract. The rule of law is that consideration on contract. Section 25 of the ICA embodies the rule of agreement without consideration is void. However, there are certain exceptions to the general rule. If an agreement is written registered. Section का है इसका? नहीं यार. अब है I would be blunt rather than giving you false hope. Sit here. अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को तो लिखना ही है तो 6 बजे जाओ, 1 घंटे का रेस्ट करो, 4-5 घंटे लगातार लॉ के आंसर्स लिखो, अगर अकाउंटिंग इको कौन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो. ठीक है, बट यू नीड एन इम्प्रूवमेंट. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. हरिओम तुम्हारी कॉपी दो, आजान तुम्हारी कॉपी दो. चार्ली requires a lot of improvement, but I'm telling you, you have a high caliber because you have the tendency to learn things fast. Azan says, consideration is when at the desire the promise is the promise of another person. ये अच्छा लिखा, ये अच्छा लिखा. अब देखो अजान की प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. अजान राइट्स वेरी वेल. उसका कंटेंट किसी से भी अच्छा नहीं है. यहाँ पर कंटेंट में वो बिल्कुल वो ही लिखता है जो लिखना चाहिए, पर अजान की स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है. स्ट्रक्चरिंग कैसी? वो क्या करता है, वो लिंक नहीं कर पाता. जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, द डेफिनेशन बाय फ्रेडरिक पोलो स्टेट्स कंसिडरेशन एज द रेलेवेंट केस ऑफ कंसिडरेशन इज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव. द केस स्टेट्स दैट दिस. तो अजान तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है, तुम वो ही लिखते हो जो लीगली वैलिड है, बट सिर्फ स्ट्रक्चरिंग पे काम करो. अगर तुम्हें स्ट्रक्चरिंग, हमने वैसी बात करी थी परसों के सेशन में, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है. अब जब भी तुम मुझे आगे दोगे वो स्ट्रक्चरिंग से दोगे. तुम्हें थोड़ी दिक्कत आ रही है, यश की कॉपी देखो, महक की कॉपी देखो, दे हैव रिटन गुड. स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल ऑलमोस्ट परफेक्ट जा रही है तुम्हारी. ठीक है, आजान कंटेंट बहुत अच्छा है, ऐसे ही करते रहना, स्ट्रक्चरिंग पे काम करो. ठीक है. आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट हरिओम. हरिओम, तुम बहुत छोटा लिख रहे हो, मतलब कंटेंट है इतना सारा, तुम देते हो मुझे इतना. आई डोंट नो तुम्हें पता ही इतना है कि तुम्हें सब पता है, बट तुमको लिखना इतना है. क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, फैक्ट और लॉ का कोरिलेशन मैं अभी समझा देती हूँ. इसके अलावा कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो तुम लिखते अच्छा हो, जितना लिख रहे हो वो 100% करेक्ट है. जो लिखा है ना वो 100% करेक्ट लिखा है. किसके लिए? आज मैं बेटा तुम्हें चेक करके दूंगी. आई रिक्वायर सम टाइम. जितना तुम्हें लिखना है वो सब बिल्कुल प्रॉपरली लिखा है. ठीक है, बट तुम्हें और लिखने की जरूरत है. आजान, तुम्हें स्ट्रक्चरिंग की जरूरत है. चार्ली, तुम क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, बट पॉइंट क्या है कि तुम कॉपी में नहीं लिख पा रहे. सेम विद अभय, क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट लिख नहीं पा रहा. और राइटिंग इंप्रूवमेंट करो. मैं तुम्हें सबसे बेस्ट बताती हूँ यार, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ. इफ यू गाइस सी माई राइटिंग, आई कैन टेल यू माई राइटिंग. इफ यू गाइस वांट टू सी माई राइटिंग, जस्ट सी माई राइटिंग, और मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने कब इंप्रूवमेंट करी है. तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे. Come and see my writing. Come and see my writing. If you guys want to see my writing. अब तुम लोग को लगेगा ये राइटिंग बैलेंस्ड है, बट ये राइटिंग मैंने 12वीं क्लास में इंप्रूव करी है. आई हैव डन इट इन माई 12th स्टैंडर्ड. और मैंने कैसे करी है? कर्सिव राइटिंग की कॉपी ले लेके वापस कर्सिव राइटिंग सीखी है. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी. मैंने अपनी राइटिंग 12वीं स्टैंडर्ड में कर्सिव राइटिंग की स्टेशनरी से कॉपी लेकर आई और कर्सिव राइटिंग वापस सीखी 0 से, और मुझे कोई शर्म नहीं आई.
क्योंकि मुझे मेरी राइटिंग अच्छी करनी थी। तो जिसकी राइटिंग खराब है, कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई छोटा नहीं बन जाता, क्योंकि तुम्हें एग्जाम क्लियर करनी है तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। तो जिसकी राइटिंग खराब है, अगर कर्सिव राइटिंग की कॉपी वापस उठानी ही पड़ रही है तो उठा लो। एवरेज, मैं सच बोलती हूँ, ठीक है। तो चार्ली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, बट यू हैव अ कैलिबर। तुम्हारे पास टैलेंट है, बट तुम अगर कर पाओ तो तुम अपने आप को एफर्ट दो विद आंसर राइटिंग तो कर लोगे। हाँ हाँ, नहीं करना था। अब तुम्हें सब आता है अभी, राइट, यू नो इट राइट नाउ, बट यू नॉट, तो डू इट। तो प्लीज गिव मी योर आंसर्स टुमारो, ठीक है। हरिओम, प्लीज गिव मी आंसर्स टुमारो। हाँ, मैं एप्लीकेशन और वो फैक्ट का भी बताऊंगी। गाइज, इफ यू वांट टू गिव द आंसर्स, गिव इट। तो मेरे पास अभी भी कुछ कॉपी बची है इस बैच की, मैं वो चेक करूंगी, और ये कॉपी जो मेरे पास आ जाइए वो भी मैं रिवर्ट करूंगी। बट अब है इम्प्रूव, ठीक है। अब इससे ना हमें सोचना नहीं है, हमें काम करना है, ठीक है। चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो अभी तक हमने इंडेमनिटी कौन सेक्शन में पढ़ा, और यश कल का आंसर का है? सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, ओके, चलिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126, तो समझिए, ठीक है। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट गाइस, if you also want to submit, if you also want to submit answers and get it checked by me and want a detailed feedback, you can just contact to the organization on the given numbers that I'll show you in the last of the slide, or you can also see fetch our number from the Google and just send the answers, contact them and I will give you the feedback accordingly on your given answers. चलिए, contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. Same with same like indemnity, same like indemnity. अब पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है। The person who gives the guarantee, जो देता है वो कौन होता है? इंडेमनिटी में कौन होता है? Indemnifier. The person in respect of whom the guarantee is given is called as principal debtor. जिसको गारंटी दी जाती है वो कौन है? The person in respect of whom the guarantee, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में, मतलब जिसके, फॉर एग्जाम्पल बैंक के बिहाफ पे गारंटी दी गई तो बैंक, ठीक है। एंड द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। तो ये पर्टिकुलर इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में वो कौन था सामने वाला, जिसको जिसको इंडेमनिटी दी गई थी? इंडेमनिटी होल्डर। तो समझना, ये समझ लो एक बार, ये समझ लो, गारंटी में तीन, एक हो गया प्रिंसिपल डेटर, ये हो गया श्योरिटी, ये क्या हो गया? अब श्योरिटी कौन? जो गारंटी दे रहा है। जिसको गारंटी मिल रही है वो कौन? जिसको गारंटी मिल रही है वो कौन? जो गारंटी जिसके बिहाफ पे दे रहा है कि भैया आपके रिस्पेक्ट में मैं दे रहा हूं, वो कौन? जिस, अब इंडेमनिटी में समझना, जो गारंटी दे रहा है, जो इंडेमनिटी दे रहा है वो कौन? जिसको इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ में मिल रही है वो कौन? अब देखो, ये ट्राई पार्टी अग्रीमेंट है, concurrence of three contract, the contract connecting each other as contract, principal debtor creditor, creditor surety and surety principal debtor. Clear? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? तुम कहाँ हो? टेंशन में हो? टेंशन में तो नहीं हो? हाँ, रिलैक्स रहो। तुम्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा तब तक इंप्रूव नहीं कर पाओगे। बताओ, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, टेल मी, से बताओ, व्हाई आर यू एंशियस? क्या हुआ है?
सुनो गाइस, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ. ओके, यू हैव फ्रेंड्स हियर? ओह सो स्वीट, सो स्वीट. देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, आई टेल यू. देखो, एक तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, डोपामीन पता है सबको? डोपामीन, डोपामीन, डोपामीन हैप्पी हार्मोन नहीं? डोपामीन रिलीज करने के कुछ तरीके हैं. हैप्पी हार्मोन, हमारी जो बॉडी है ना, बॉडी वो क्या, हमारी बॉडी है वो केमिकल कंपाउंड की बनी है. केमिकल कंपाउंड मतलब उसमें जो डालोगे वो वैसा फंक्शन करेगी. अपनी बॉडी में जो डालोगे वो वैसा फंक्शन करेगी. ठीक है? अब हमारे जो हैप्पी हार्मोन है वो है डोपामीन. डोपामीन रिलीज करने के तरीके हैं, रन कर लो, भाग लो थोड़ा, ठीक है, जिम चले जाओ, एक्सरसाइज कर लो, डार्क चॉकलेट खा लो, हेल्दी फूड खा लो. जंक फूड खाओगे तो डोपामिन रिलीज नहीं होगा. मैं तुम्हें बताती हूं, टेंशन से, स्ट्रेस से जीवन में आज तक किसी को कुछ नहीं मिला भाई. और तुमको किस बात का टेंशन है? तुम घर चलाते हो क्या? मेरे को एक बात, तुम घर चलाते हो? बच्चे बच्चे हैं तुम्हारे? नो टेल मी, बच्चे बच्चे हैं? तुम्हें, तुम्हारे पे कोई जिम्मेदारी है कि भैया अगर मैंने इस महीने नहीं कमाया तो मेरी लग जाएगी? जिम्मेदारी ऐसी कोई नहीं. तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर है तुम्हारे मॉम डैड का कि भैया क्लियर करना ही है नहीं तो घर मत आना? ऐसा नहीं. सपोर्टिव है. तो तुम्हें टेंशन किस बात का है? ये टेंशन है कि तुम कर नहीं पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे हो मैं तुम्हें बताऊं? क्योंकि तुम्हारी मेहनत कम है. जो मेहनत करता है ना वो डरता नहीं है. अब है जो मेहनत करता है वो कभी ये एक्सक्यूजेस नहीं देता. मैं बहुत ब्लंट रहती हूं मेरे सेक्शंस में क्योंकि मेरे को फेक सिंपैथी देना आता ही नहीं. बीइंग ऑनेस्ट, अगर तुम हैव यू सीन क्लास 12th फेल, 12th पास क्या थी वो, 12th फेल देखिए, वो देखिए तुमने कितनी मेहनत करता है वो, रगड़ लेता है अपने आप को, रगड़ कर कमाता भी है. भाग मिल्खा भाग देखिए, देखिए क्या तुम उसका 10% भी करते हो? साफ बताओ, हाँ या ना? क्या तुम 12th फेल का 10% भी करते हो? तो तुम्हारी मेहनत क्या है? कम. जब आपको आपको डर लगने लगे, घबराहट होने लगे ना, मतलब आपकी प्रेपरेशन आधी है. मैं कॉन्फिडेंस से क्यों बैठती हूं यहां पर? मुझे पता है मेरी प्रेपरेशन पूरी है. मेरे इमेज यार, पता है अभी मैं बताऊं, व्हेन आई यूज्ड टू गो इन सीएस पेपर ना, तो मेरे डैड मेरे को बोलते थे बेटा नहीं भी हुआ ना तो कोई बात नहीं. मेरे डैड मेरे को बोलते थे अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं. मैं बोलती थी नहीं, मेरा इसी अटेम्प्ट में होगा. एंड मैं तुम्हें बताऊं, मैं सुबह 3 बजे आज भी उठती हूँ. और ये मेरा स्केड्यूल आज से नहीं है. व्हेन आई हैव क्लियर्ड फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, आई एम वेकिंग अप एट 3 o'clock कंसिस्टेंटली. मैं इस दिवाली पर भी 3 बजे उठी थी, मैं अपने बर्थडे पे भी 3 बजे उठती हूँ. मैं सारे फंक्शंस अवॉइड करती हूँ, मैं सारे मैरिज फंक्शंस अवॉइड करती हूँ. मैं रेयरली कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ अगर वो मेरे टाइमलाइन पे हो, अदरवाइज वो भी सेलिब्रेट नहीं करती. मैं आज भी 3 बजे उठी हूँ और मैं इधर हूँ. एंड आई विल वर्क कंटिन्यूसली टिल 9 in the evening. मैं बीच में सोती भी नहीं हूँ. 8, मैं 8 o'clock सो जाती हूँ. मैं आज भी इमेजिन, मेरे को बिकॉज आई हैव अ फैमिली जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई हेल्थ, बिकॉज आई नीड टू रीड फॉर सो दैट आई कैन टीच यू, आई हैव टू वर्क रिगरसली. सब लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ तुम काम नहीं कर रहे. सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ तुम नहीं कर रहे. सब लोगों के ऊपर जवाबदारी है, सिर्फ तुम पे जवाबदारी नहीं है. सब लोग अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, सिर्फ तुम प्यार नहीं करते. पॉइंट क्या है कि तुम फाइट कैसे करते हो.
जैसे इसने मेरे को बोल दिया कि मैम कल तो मेरा फंक्शन था, मैं नहीं कर पाया। अगर मैं होती, मैं फंक्शन छोड़ देती बट मैं आंसर लिख के लाती, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी सीए है। लीव इट। परफॉर्मेंस एज इन लाइक सिंगिंग, डांसिंग, सिंगिंग, गिटार। आपकी प्रायोरिटी आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी मेरा काम है, कि मेरी प्रायोरिटी मेरा पर्सनल लाइफ है, कि मेरी प्रायोरिटी स्ट्रेस है। और जब भी स्ट्रेस हो ना, तो ये समझ लेना कि तुम्हारी प्रेपरेशन आधी है, इसलिए तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है। आज तुम स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हें कमेंट दिया है, राइट? अगर मैं तुम्हें अच्छे कमेंट देती कि वाह भाई तुमने तो अच्छा लिखा, तो मैं अच्छी हो जाती तुम्हारे लिए। बट पॉइंट पता है क्या है? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें अच्छे कमेंट अभी दे दूं फेक में, तुम एग्जाम में अगर ये लिख के आओगे तो क्लियर नहीं हो पाओगे। Do you want to tell me that it is written that consideration without agreement is enforceable in eyes of law? Give me. हाँ, give me. I'll prove you abhi. Give me. हाँ, give me. Go to the book, that whatever book that you have used, come book, bring. Bring the book that you have used. Things does not work in life like this. Online students, I'll be, इधर रखो, इधर रखो, दो। मेरे को जरा ये कंसिडरेशन वाले टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन बताना, तो जो ड्राफ्ट किया है, यही था मैम। जो मैंने कंसिडरेशन का क्वेश्चन दिया था टेस्ट का, उसका जरा सेकंड वाला पार्ट बताना, तो क्या था? पढ़ दो मेरे को जरा। वन का सेकंड क्वेश्चन बताओ। यही डिस्कस, ओके। मेरे को जरा पेन देना एक। ये देख रहे हो? नो। ये देख रहे हो? ऑन। इससे तुम्हारा आंसर पूरा चेंज हो गया है। तुम एक बार पढ़ लो इसको और इसको, दोनों के मीनिंग चेंज है। ऑन, ऑन कंसिडरेशन, ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये है नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। इसका सेक्शन का है। अब इसमें अगर ये 6 मार्क का होता या 10 मार्क का होता, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन नहीं लिखते क्या? कंसिडरेशन की डेफिनेशन नहीं लिखते? तो फिर ये सब कहाँ है? सेक्शन 2D कहाँ है? सेक्शन 25 कहाँ है? अगर तुम कोई 10 मार्क का लिखना है तो तुम इतना लिखोगे क्या? ज्यादा में ज्यादा कैसे करोगे? ये सब तो ऐड करना पड़ेगा ना। मेरे को तो मालूम मेरी गलती है, बाकी मेरे को ये मालूम मेरी गलती कहाँ पर है। बाद में डिस्कस करते हैं, क्लास के बाद वापस बैठ जाएंगे। चलो गाइस, गाइस आ जाओ, ठीक है, आराम से। ये ट्राई पार्टी अग्रीमेंट होता है,
श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का। लाइबिलिटी अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट, प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल डेटर की, मतलब बैंक की लाइबिलिटी होती है। और फिर सेकेंड लाइबिलिटी किसकी होती है? श्योरिटी की। प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी की, यहां पे रहो अभी। चलो अब एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज प्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंसी आर नेसेसरी टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो हर जगह एप्लीकेबल है, कंटीजेंट में भी, इंडेमनिटी में भी और गारंटी में भी। बट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन, no direct consideration in the contract between the surety and the creditor। क्या surety और creditor के बीच में कोई contract होता है क्या? नहीं होता। Consideration of principal debtor is considered to be advocate for the surety। तो ये बात समझना गारंटी में ये बात समझना कि प्रिंसिपल श्योरिटी और क्रेडिटर में कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, सॉरी कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं होता है। श्योरिटी कौन? जो गारंटी लेता है। क्रेडिटर कौन? जिसको गारंटी मिली। और प्रिंसिपल डेटर कौन? जिसके बिहाफ पे ली है। तो क्रेडिटर और श्योरिटी में कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन होता है क्या कि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा? नहीं। ठीक है, अब क्रेडिटर डिफॉल्ट करेगा, फिर यार वही सुनो, मैंने एग्जांपल डाला है कि नहीं डाला है? सुनो, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड एज, ये गारंटी मैंने दी, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड एज, ये क्या हो गया? बैंक। एंड द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। मतलब मैंने क्रेडिटर को, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, श्योरिटी ने गारंटी ली क्रेडिटर की, श्योरिटी ने सुनो, श्योरिटी ने, मैं हूं श्योरिटी, मैं के प्रिंसिपल डेटर, चार्ली है क्रेडिटर, ये समझना। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, मैंने गारंटी दी, गगन ने गारंटी दी, द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम द गारंटी इज गिवन, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर इन रिस्पेक्ट ऑफ दी गई है। एंड द पर्सन टू किसको दी गई है? क्रेडिटर को दी गई है, दैट मीन्स चार्ली को दी गई है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसमें ट्राई पार्टी अग्रीमेंट है। बट क्या श्योरिटी और क्रेडिटर की कोई कंसिडरेशन है क्या? मतलब चार्ली और मेरा कोई कंसिडरेशन है क्या? क्या महक के ब्याह पे दी है कि जब तक वो डिफॉल्ट नहीं करती, जैसे वो डिफॉल्ट कर लेगी तो मैं पिक्चर में आ जाऊंगी। ठीक है, चलो अब आओ एसेंशियल्स। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी ओरल और रिटन। ठीक है, चलिए टाइप्स। स्पेसिफिक गारंटी, व्हेन अ गारंटी एक्सटेंड्स टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ डेप्थ, इट इज नोन एज स्पेसिफिक या सिंपल गारंटी। मतलब देखो, स्पेसिफिक गारंटी है तो स्पेसिफिक के साथ साथ सिंगल ट्रांजैक्शन, एस, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल ट्रांजैक्शन। क्या हो जाएगा? सिंगल ट्रांजैक्शन। कंटिन्यूइंग गारंटी, व्हेन अ गारंटी एक्सटेंड्स टू द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत सारे सीरीज में कंटिन्यू करती है। अब रिवोक करना है, क्या करना है? रिवोकेशन मतलब कैंसिल करना। तो नोटिस दे दो कि हमें कैंसिल करना है। मेरी डेथ हो गई, श्योरिटी की डेथ ही हो गई, राइट? बाय नोवोकेशन, बाय ऑल्टरेशन, नोवोकेशन, ऑल्टरेशन, रिसेशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना? ठीक है, यस। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, अरेंजमेंट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर एंड लॉस ऑफ सिक्योरिटी। समझो इसका, ये समझना। या तो आप नोटिस दे दो एक्सप्लिसिटली कि हम रिवोक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवोक कर रहे हैं। श्योरिटी की क्या हो जाती है? डेथ। ठीक है, अब नोवोकेशन और ऑल्टरेशन हो जाता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया जाता है,
प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का अरेंजमेंट हो जाता है या लॉस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है। कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट है? 7। चलो पहले बताओ क्या है। 130 तो नोटिस ऑफ रिवोकेशन, उसके बाद 131, उसके बाद नोवेकेशन ऑल्टरेशन, उसके बाद प्रिंसिपल डेटर 134 प्रिंसिपल डेटर रिलीज एंड डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, फिर अरेंजमेंट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर एंड लॉस ऑफ सिक्योरिटी। देखो वापस करते हैं, या तो सबसे पहले आपने क्या दे दिया, रिवोकेशन का नोटिस दे दिया, कौन चला गया, श्योरिटी चला गया, कॉन्ट्रैक्ट के दो, नोवोकेशन और ऑल्टरेशन, आपकी जो सिक्योरिटी है उसका लॉस हो गया, और अरेंजमेंट किसके बीच में है, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के, और किसको रिलीज कर दिया, किसको रिलीज कर दिया। चलो मैं वापस कराऊं एक बार। 7 पॉइंट, पहला पॉइंट नोटिस किसका, अरे नोटिस किसका, रिवोकेशन का, दूसरा क्या है, श्योरिटी की डेथ हो गई, और ऑल्टरेशन और नोवेशन, और प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर का अरेंजमेंट, किसको रिलीज कर दिया, और लॉस किसकी हो गई, सिक्योरिटी की। चलो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। In general circumstances, the liability of surety arises only when, in case of default of principal debtor, so his liability is secondary. जनरल में सबसे पहले किसकी लाइबिलिटी है, प्रिंसिपल डेटर की, सेकेंड लाइबिलिटी किसकी आती है, श्योरिटी की। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मतलब क्या दोनों की लाइबिलिटी सेम है, क्या दोनों की लाइबिलिटी सेम है, हाँ सेम है, सेम ही है, लाइबिलिटी तो सेम है बट सीक्वेंस अलग है। पहले किसकी लाइबिलिटी आएगी, दूसरी किसकी लाइबिलिटी आएगी, श्योरिटी की। दैट मींस लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी और लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर क्या है, सेम है। इफ लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर रिड्यूसेस देन श्योरिटी की लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। चलो when creditor recovers a part of his loan from property of principal debtor, when liability of principal debtor reduces by the order of court। समझो, अगर कोई भी अमाउंट रिकवर कर लिया गया है तो क्या वो श्योरिटी से वापस लिया जा सकता है, क्या नहीं लिया जा सकता, तो उतनी उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चले, इफ ड्यू टू सम रीजंस द प्रिंसिपल डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, स्टिल श्योरिटी कैन बी लायबल इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अगर प्रिंसिपल डेटर कुछ सिचुएशंस में लायबल नहीं है तो श्योरिटी लायबल हो सकता है। कब हो सकता है, जब प्रिंसिपल डेटर माइनर हो, जब प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट का मतलब बैंकरप्ट हो जाए। इफ लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर हैज बीन टाइम बार्ड, मतलब प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी बोला गया है कि 6 महीने की है और वो 6 महीने का समय खत्म हो जाए, वो 6 महीने का समय खत्म हो जाए। एंड इफ क्रेडिटर डिलेज इन फाइलिंग सूट अगेंस्ट द डेटर, अगर वो डिले कर देता है तब भी ऐसा हो सकता है। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट। चलो, मोरओवर इन सर्टेन केसेस अ श्योरिटी कैन रिस्ट्रिक्ट और लिमिट हिज लायबिलिटी आल्सो। ये सब अग्रीमेंट का पार्ट है। तो सबसे पहले ये बताओ गारंटी किस में डिफाइंड है, 134 क्या था, 124 क्या था, 125 क्या था, 126 गारंटी, 126 क्या था, गारंटी। ठीक है, अब चलते हैं। दो टाइप की गारंटी, कौन कौन सी, स्पेसिफिक किस चीज के लिए, कंटिन्यूइंग किसके लिए, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। रेवोकेशन के 7 पॉइंट, रेवोकेशन का पॉइंट, रेवोकेशन 130 सेक्शन 130 पहला पॉइंट क्या है, नेचर नहीं, नोटिस दे दो। पहला पॉइंट क्या है, पहला नोटिस, फिर क्या हो जाएगा, श्योरिटी की डेथ हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, नोवेशन एंड ऑल्टरेशन, क्या किस में हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट में हुआ। फिर अरेंजमेंट किसका, प्रिंसिपल डेटर और
क्रेडिटर का, फिर किसको रिलीज कर दिया, प्रिंसिपल डेटर को, फिर लॉस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, चलो क्या श्योरिटी की लाइबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी, मतलब सीक्वेंस क्या है, पहले लाइबिलिटी किसकी है, फिर लाइबिलिटी किसकी है, क्या प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी की लाइबिलिटी सेम है, हाँ, बट क्या प्रिंसिपल डेटर के बाद श्योरिटी भी लाइबल हो सकता है, हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है। वो केसेस क्या है, अगर प्रिंसिपल डेटर क्या हो, माइनर हो, या प्रिंसिपल डेटर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या उसकी टाइम बार्ड हो, या उसकी टाइम बार्ड हो। ठीक है, अब डिफरेंस समझो। इंडेमनिटी में कितनी पार्टी होती है, इंडेमनिटी में कितनी पार्ट होती है, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। गारंटी में कितनी पार्टी होती है, कौन कौन सी, नेचर ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक 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 ही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंक्लूड थ्री सब कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, नेचर एज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड 2 पार्टीज एंड 1 कॉन्ट्रैक्ट, ये सिंपल होता है, बट गारंटी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। गारंटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कितने पार्टी होती है, कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं, 3, कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं, 3। लाइबिलिटी में प्राइमरीली लाइबिलिटी किसकी है, उसके बाद श्योरिटी, और दोनों की लाइबिलिटी सेम है, हाँ सेम है। विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कोई क्लासिफिकेशन है क्या, कोई क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है। तो एब्सोल्युटली लाइबिलिटी किसकी है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी किसकी है, इंडेमनीफायर, मतलब किसकी, मेरी। ठीक है, बट उस केस में प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल डेटर, सेकेंडरी लाइबिलिटी श्योरिटी। ठीक है, चलो एक बार पढ़ लें फिर एंड करेंगे। चलो बताइए, इंडेमनिटी सेक्शन, इंडेमनिटी 125 में क्या है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। क्या राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर भी है, क्या क्या है, पैसे की बात नहीं हुई है, पैसे की बात नहीं है इसमें। थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है और वो कंपेंसेशन भी ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किधर डिफाइंड है, 126, कितनी पार्टी, श्योरिटी, क्रेडिटर, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। एसेंशियल फीचर्स क्या है, तीन अग्रीमेंट होते हैं इसके, पार्टी कितनी, 3, अग्रीमेंट कितने, लाइबिलिटी प्राइमरीली किसकी है, सेकेंडरी में श्योरिटी। क्या दोनों की लाइबिलिटी सेम होती है, क्या इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, क्या ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इंडेमनिटी कौन से नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट, क्या वो भी ओरल रिटन हो सकता है, क्या वो एक्सप्रेस इंप्लाइड हो सकता है। ठीक है, टाइप्स, 2 टाइप की गारंटी, क्या स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग, स्पेसिफिक और स्पेसिफिक मतलब कंटिन्यूइंग मतलब सीरीज ऑफ। रेवोकेशन किससे होगा, 7 पॉइंट, पहला सेक्शन क्या है, नोटिस दे दिया रेवोकेशन का, दूसरा किसकी डेथ हो गई और सिक्योरिटी का लॉस हो गया, और क्या हो गया, नोवेशन और ऑल्टरेशन किसका, कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद अरेंजमेंट किसके बीच में, क्रेडिटर के बीच में। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर, और किसको रिलीज कर दिया। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर, तो प्राइमरीली लाइबिलिटी किसकी है और सेकेंडरी श्योरिटी की। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी क्या है, क्या सेम कोएक्सटेंसिव है, कोएक्सटेंसिव मतलब क्या सेम है, सेम है, यस। ठीक है, बट जनरली तो लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है, बट क्या श्योरिटी भी लायबल हो सकता है, कब कब हो सकता है, कौन माइनर हो और प्रिंसिपल डेटर क्या हो, चाली क्या हो गया, प्रिंसिपल डेटर क्या हो, इंसॉल्वेंट, या टाइम बार्ड हो जाए। ठीक है, अच्छा अब दोनों का नेचर बताते हैं। नंबर ऑफ पार्टी इंडेमनिटी में कितनी है, 2, और गारंटी में, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में कितने बनते हैं, 1, गारंटी में
3। नेचर क्या है? सिंपल कौन सा है? इंडेमनिटी। गारंटी क्या है? कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लाइबिलिटी में पहली लाइबिलिटी किसकी? इंडेमनिटी में किसकी लाइबिलिटी है? इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर की क्या है? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, क्योंकि किसी और की लाइबिलिटी है ही नहीं। विद रिस्पेक्ट टू गारंटी और सेकेंडरी में श्योरिटी की होती है। चलिए, आई थिंक मैं अभी आंसर राइटिंग लूंगी फॉर 15-20 मिनट्स। आई विल टेक आंसर राइटिंग। अपन लोग पर्सनल सेक्शन से इधर बैठ के कर लेते हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, if they want to get the copies checked by me and want a detailed feedback, आप चाहते हैं कि आपका एक डिटेल्ड फीडबैक हो कि आपके आंसर्स को लेकर, तो प्लीज अपना आंसर्स मेरे को, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भेज रही हूं, आप उधर भेज सकते हैं। आई विल चेक द कॉपीज एंड रिवर्ट टू यू। पीपल सिटिंग ऑनलाइन कैन सेंड द आंसर्स एंड आई विल रिवर्ट टू यू ऑन दैट रिस्पेक्टिव नंबर। पार्टिंग नोट आज का है, टुडे आई वोक अप, आई एम अलाइव, आई एम हेल्दी, कांट आस्क फॉर मोर। क्लियर? आज तुम लोग जिंदा हो, हेल्दी हो, हमारे साथ हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, इससे बेहतर सिचुएशन कोई और हो ही नहीं सकती। करेक्ट? चलिए, पीपल सिटिंग ऑनलाइन कैन गिव द आंसर्स टू द पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देन आई विल गेट बैक विद द डिटेल फीडबैक। मीन टाइम हम लोग अभी आधा घंटा है, हम लोग फीडबैक सेशंस पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन लाइव। इफ यू कैन जस्ट कॉल समबडी दैट वुड बी ग्रेट। If you can call somebody, that would be great. Thank you so much for joining live. मतलब मुझे अच्छा लगता है कि तुम लोग क्लास में आते हो, इररिस्पेक्टिव ये यूट्यूब पे भी चलता है, बट स्टिल तुम लोग आते हो फिजिकल पढ़ने के लिए। क्या अटेंडेंस का सीन होता है क्या पढ़ने के लिए? घर से पढ़ाई नहीं होती ना? Thank you everyone for joining in live. Thank you so much. I feel grateful and blessed that you join live हमेशा रोज। चलिए, चाहत नंबर गूगल पे डालना, पेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे तुम्हें सपोर्ट का नंबर मिलेगा। कॉल सपोर्ट, टेल देम कि हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आंसर सबमिट करने हैं टू मी, तो वो तुम्हें एक रिक्विजिट नंबर दे देंगे। वो नंबर पे तुम अपने आंसर सबमिट कर सकती हो। मैं डिटेल फीडबैक भेज दूंगी, आई एम कमिंग, गिव मी अ मोमेंट, आई एम कमिंग। कैन समबडी कॉल? Do you have number of any? Chahat, you can just see the contact number from the Google. Thank you everyone for joining in live. I feel grateful. Thank you so much. Can somebody please call? Yeah. क्यों? कहाँ गए थे? Sir, please end the class. मैं पर्सनल सेशन ले रही हूँ, end the class.